Now today let's start with chapter number 2, how our computers work. In this chapter we will study about how our computer work on IQ cycle, that is input, processing and output. Let's start with the chapter. I will tell you about the IQ cycle and what is IQ cycle in computer and data and structure. Now look at this picture, number each set of picture in the correct order. ठीक है, आपको याद रखना है इन पिक्चर्स को एक करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है, दैट यू विल डू योरसेल्फ. नाउ इनपुट प्रोसेस साइकिल. ऑल थिंग्स फॉलो. भाई आप कुछ भी चीज कर रहे हैं तो सब क्या फॉलो करता है? आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. ऑल मशीन्स ऑल्सो फॉलो IPO cycle. We use various machines to do different tasks. Have you ever seen a mother toasting slice of bread? What are the steps? What we do, I will tell you. First step is take a bread slice. Your mother will take a bread slice and put it in the toaster. उन slices को हम किसमें put कर देते हैं? सिर्फ toaster में. The toaster heats the bread. Toaster क्या करेगा? Bread को heat करेगा and these bread slices become crispy. और ये कैसी हो जाती है? क्रिस्पी हो जाती है. जो क्रिस्पी हो जाती है बट टोस्ट पॉप आउट ऑफ द टोस्टर, और ऐसे पॉप आउट हो जाता है. ठीक है, और तो आपका क्या बनता है? टोस्टर बन जाता है. व्हाट इज दिस? दिस इज इनपुट. ठीक है, ब्रेड स्लाइस आपका इनपुट हो गया, प्रोसेस हुआ टोस्टर, और आपका आउटपुट क्या दिया? क्रिस्पी टोस्टर दिया. तो योर ब्रेड टोस्ट आर रेडी एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रेड स्लाइस दैट वी पुट इन द टोस्टर. नाउ, और जो हमने ब्रेड स्लाइस डाली वो क्या था? आपका इनपुट था. एंड टेस्टिंग द ब्रेड स्लाइस इनटू क्रिस्पी हॉट टोस्ट, वो आपको हेल्प करा टोस्टर को टेस्ट करने में, और उसे क्या कहा? प्रोसेस. एंड देन द हॉट क्रिस्पी टोस्ट दैट यू गेट फ्रॉम द टोस्ट, जो आपको हॉट क्रिस्पी टोस्ट मिला टोस्ट करने से, वो क्या बना? आपका आउटपुट. नाउ देयरफॉर टू मेक अ क्रिस्पी हॉट टोस्ट, व्हाट वी हैव फॉलोड? वी हैव फॉलोड द IQ साइकिल. ये एक प्रोसीजर होता है फॉर प्रोसेसिंग द information. Now IPO cycle in a computer. कि how IPO cycle works in a computer. Now Vicky is working on a computer and his teacher asked him to add number. उसकी टीचर ने कहा कि आप ऐड करो 150 and 253 and let us know how we add the number 150 and 250. The first step is on a computer Vicky opens the calculate application. ठीक है, उसने क्या करा? कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ओपन करा and then he typed data 150 250 and use an instruction plus is equals to on a computer. The data and instruction given by the Vicky to the computer. The data instruction Vicky ने कंप्यूटर को दिया है. What are these? These are in the CPU. जिसे हम brain of computer कहते हैं. It works on the data and instruction that Vicky given and working on the CPU. जो working हो रही है CPU की, इसको क्या कहा जाता है? Process. And then after processing, the calculator application displays 40D. What is this? This is the final answer and the answer that is shown on the monitor. What it is? It is out. This is your input. This is your process and that is your out. ये क्या है? आपकी IPO cycle. तो कीबोर्ड और माउस से आपने नंबर डाले, ये क्या होगा? इनपुट. CPU में प्रोसेस हुए, मॉनिटर पे दिखा है 403, तो आंसर वो आपका क्या हो गया? वो आपका आउटपुट है. तो इट इज इनपुट प्रोसेस आउट. इसको क्या बोला जाता है? IPO cycle. From this example, we know that keyboard and mouse are input device. ठीक है, used for giving input, and input is the data and instruction that is given to the computer. CPU, it is processing device. It process the given input. जो भी इनपुट दिया उसको वो प्रोसेस करता है and the work on the data based on the instruction given by it. The result of the processing from the CPU is shown on the monitor as out. तो आपको मॉनिटर पे शो किया as a out. Then data and instruction. The computer can store data and instruction that you give to it. Therefore, the stored data और instruction है उनको हम यूज करते हैं at any time. आप कहीं भी किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं. We can define data as an unprocessed information. देखो, जो डाटा होता है वो एक तरीके का अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, मतलब वो अनऑर्गेनाइज होता है. एंड डाटा इज द इनपुट एंड वी इनपुट द डाटा यूजिंग कीबोर्ड एंड हम किसका यूज करके? कीबोर्ड और माउस का यूज करके डाटा को इनपुट. इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन ये होता है आपके कमांड्स.
दैट यूजर्स गिव्स टू द कंप्यूटर। कमांड्स होते हैं जो यूजर किसे देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। एंड व्हाट द सीपीयू प्रोसेस द डाटा, और सीपीयू क्या प्रोसेस करता है, डाटा पे। द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस। हम कहाँ स्टोर करते हैं, इन द स्टोरेज। देन ऑर्गेनाइज डाटा को क्या कहते हैं, देखो अनऑर्गेनाइज डाटा तो क्या होता है आपका, अनऑर्गेनाइज जो डाटा होता है वो आप, जो ऑर्गेनाइज डाटा होता है वो कहता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जो आपको हम अनऑर्गेनाइज देते हैं वो क्या होता है, आपका डाटा होता है। तो our chapter has been completed. I have told you about the IPO cycle, how your mother make a bread toast, and then I have told you the IPO cycle in the complete. Hope you understood. That's all for today. Thank you.